When you study the Word of God, especially after the resurrection of Jesus Christ, आप यीशु के पुनरुत्थान के बाद अगर वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, you need to really understand how God deals with His people now. आपको ये समझना बहुत अनिवार्य है कि परमेश्वर कैसे अब लोगों से, अपने लोगों से उनके साथ काम करता है। In book of James, the Bible says, a double-minded man will not receive anything. और याकूब की पत्री में लिखा है कि जो व्यक्ति दुष्टता है वो परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। And one of the things that enemy will delight to do with you is keep you double-minded concerning the Lord you worship. और एक बात जो शैतान हमेशा करता है वो आपको दुचित्ता रखना चाहता है परमेश्वर के संबंध में। So therefore, we need to know whom we worship. इसलिए जरूरी है हम इस बात को जानें कि हम किसकी उपासना करते हैं। Jerry mentioned about John chapter 4, जेरी ने यूहन्ना 4 का वर्णन किया where Jesus is speaking to Samaritan women. जहाँ यीशु उस सामरी स्त्री से बात करते One हैं। of the things Jesus declared to that woman was, you don't know who you worship, but we know whom we worship. और एक बात जो यीशु ने उस स्त्री से कहा कि तुम नहीं जानते तुम किसकी उपासना करते हो, पर मैं जानता हूँ मैं किसकी करता The हूँ। saddest part in the church today is many people don't really know who they worship. सबसे दुखदाई बात कलीसिया में आज ये है कि हम नहीं जानते हम किसकी आराधना करते हैं। My goal with Upper Room Church is not that we'll be filled with people, मेरा उद्देश्य अपरूम कलीसिया को लेके ये नहीं कि यहाँ बहुत से लोग भर जाएं, but my prayer is, God, that everyone who you bring will be rooted and grounded in Jesus. पर मेरा उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो यीशु में पूरी तरह से जड़ित हों। Amen. So my goal is that your life become fruitful in Christ. मेरा उद्देश्य है कि आपका जीवन यीशु में फलवंत होने वाला हो सके। My goal is not to keep you dependent on your pastor. मैं नहीं चाहता कि आप पूरी तरह से मेरे पे, अपने पास्टर पे डिपेंडेंट हो। My goal is to feed you in a way that your relationship with Lord Jesus will be so strong that you will become pastor for someone else. मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक चरवाहे का हो जाए। Amen. God is going to do great and mighty things in this church. परमेश्वर इस कलीसिया में अद्भुत और बड़े काम करने पर है। So we have been looking last week into a beautiful topic of how from the law God has changed the covenant. हमने पिछले सप्ताह देखा कैसे परमेश्वर ने लॉ से, व्यवस्था से निकाल कर वाचा को बदल दिया। We have been looking at from if he brought us to because. हमने देखा कैसे उसने हमें यदि से क्योंकि में लाया। That if was responsible on my actions and my behavior. वो यदि था वो मेरे करने पर आधारित था। If you do this, if you obey, then you will have this. यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू आज्ञा मानेगा तो तुझे ये मिलेगा। Each one of us live in that domain of if. हम सब कभी ना कभी उस यदि में रहे हैं। You want this, you need to do this. अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये मिलेगा। Because we have learned to grow in the place where everything that I harvest comes from what I sow. क्योंकि हमें ऐसा सीखा जो कुछ हम पाते हैं वो इस बात पर हमने क्या बोया है। So our mentality is like that. इसलिए हमारी मानसिकता ऐसी है। If you heard sister's testimony, अगर आप बहन की गवाही को सुनेंगे, her testimony was one statement she used. उन्होंने अपने गवाही में एक वाक्य को कहा, Lord, I never robbed anybody. प्रभु मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, So I need it back. इसलिए मुझे वापस चाहिए। What was in the root of that thought? उस विचार के जड़ में क्या था? I deserve because I am good. उस वहां ऐसा था कि मैंने चूंकि गलत नहीं किया इसलिए मुझे अच्छा होना चाहिए मेरे साथ। But new covenant is not based on because I did not rob, I want my stuff back. क्योंकि मैंने गलत नहीं किया मुझे मेरा सामान वापस मिलना चाहिए। New covenant is based on because you are my father, I want it. और जो नई वाचा है वो इस बात पर आधारित है कि चूंकि तू मेरा पिता है मुझे भी चीजें मिलनी It has nothing to do with whether I did right or I did wrong. इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। That robber who was on the next side of Jesus Christ would never pray and say like that, because I did like this, I deserve this. जो यीशु के साथ जो डाकू लटकाया गया था उसने कभी ऐसा नहीं कहा जो मैंने किया है इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो। He said, we are getting what we sowed. उसने कहा जो हम वो उन बातों का भुगत रहे हैं जो हमने कर्म किए हैं। But Jesus said, today you will be with me in paradise. पर यीशु ने कहा तू मेरे साथ आज फिरदौस में होगा। Why? Was it based on what he did? क्या वो इस बात पे आधारित है जो उसने किया है, Or was it based on what Jesus was doing? या वो इस बात पे आधारित है जो यीशु कर रहे थे इस समय। Every time you feel God should be good to you because you have lived good, you have fallen back
from the mercy of God. हर बार जब आप इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर आपके साथ इसलिए अच्छे हों क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आप उस अनुग्रह से हट जाते हैं। You have gone back into the mentality of Israelites आप वापस इजराइल के मानसिकता में चले जाते हैं who were under the law. जो व्यवस्था के अधीन थे। If I obey, I am entitled. अगर मैं आज्ञा मानता हूं तो मुझे मिलना चाहिए। You getting my point? आपको समझ में आ You रहा है? have chosen to be if आप वापस उस यदि में चले जाते हैं rather than coming into because Jesus, you are good, I deserve this. बजाय इसके कि क्योंकि यीशु तूने किया है मुझे मिलना चाहिए। Hello. So when I listen to people talk, it's very easy for me to know what they believe. और जब लोगों की बातें मैं सुनता हूं मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है जानना कि वो किस बात पे विश्वास When करते हैं। people pray, it's very easy for me to know what they believe. जब वो प्रार्थना करते हैं बड़ा आसान है मेरे लिए जानना कि वो क्या विश्वास करते हैं। Why? Because what is in their heart comes from their mouth. क्योंकि जो उनके मन में होता है वो उनके मुख से निकलता है। Today I want to take you into a journey of because again. मैं वापस आज आपको उस क्योंकि के सफर में लेके चलना चाहता हूँ। Long enough religion taught us to reap from our works. बहुत लंबे से मतलब धर्म ने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्म से पाना है। Brother, Jesus also said this, what you want people to do for you, you should do for them. पर वचन में लिखा है यीशु ने कहा जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। The covenant is not between people and you. The covenant we are talking is between God and you. पर जो वाचा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके और लोगों के बीच में नहीं है, वो आपकी और परमेश्वर के बीच में God does not deal with you based on what you did. God deals with you based on what He did. परमेश्वर आपसे इस बात पे अपना संबंध नहीं रखते कि आपने क्या किया है, पर वो आपका संबंध अपने पे आधारित रखते हैं। So we have to continue to allow Holy Spirit to break that mentality which has kept us arrested in the church. और हमें लगातार पवित्र आत्मा से इसकी सहायता चाहिए कि हम उन बातों को उन पुरानी विचारधारा को तोड़ सके। You know, every time you believe this, that if I would have been good, if I'm good, I deserve this back. अगर आप लगातार इस मानसिकता में बने रहेंगे कि चूंकि आप अच्छे हैं आपको चीजें वापस मिलनी चाहिए, And if that doesn't come back, और अगर वो वापस नहीं आया, you know what enemy will do? पता है शैतान आपके साथ क्या करेगा? You know, Sister Kamala, what enemy will do if you didn't get your purse back? अगर सिस्टर कमला आपको आपका पर्स वापस नहीं मिला तो पता है आपके साथ शैतान क्या आपके मन में बात करेगा? He will tell you you're not good enough. That's why God didn't give you. और आपको वो ये बताएगा कि आप अच्छे नहीं हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, And you will believe that. और आप इस बात पे विश्वास करें। Why? Because you're not basing it on His love. You're basing it on your performance. क्योंकि आप उसको उसके प्रेम पे नहीं अपने काम पे आधारित कर रहे हैं। And every time you do that, you are walking in a danger zone. और जब भी आप ऐसा करते हैं आप एक बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं। You're giving enemy room to accuse you. आप शैतान को जगह दे रहे हैं जहां वो आप पे दोष लगा सके। Let's go back to Isaiah 54. यशायाह उसके 54वें अध्याय में फिर चलते हैं। Sing, O barren, you who have not borne. Break forth into singing and cry aloud, you who have not labored with child. For more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. हे बाज तो जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई गला खोल के जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? God is saying, rejoice. परमेश्वर कह रहा है जय जयकार कर, Great things are going to happen to you. बड़ी बातें तेरे साथ होने पर हैं। Why? क्यों? Because your husband is your maker. क्योंकि तेरा पति तेरा करता है। He is the God of whole earth. वो सारी पृथ्वी Verse का number 5. वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। He is the Lord. वो परमेश्वर है। Because you have become part of Him, His blessings flow in your life. क्योंकि वो तेरे साथ तू उसके साथ जुड़ गई है, उसकी आशीषें तुझे मिलती Look हैं। at verse number 14. देखिए इसका 14वां पद क्या कहता In है? righteousness you shall be established, you shall be far from oppression, for you shall not fear. तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। From terror, for it shall not come near you. क्योंकि तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। What is it saying? क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? It's saying, hey, you know what? If you choose to live by this covenant that God makes with you, अगर तू इस वाचा के आधार पे अपना जीवन जीना शुरू you करेगी, will never be scared in life. तुझे कभी डरना ना पड़ेगा, You will never be oppressed in life. कभी तुझे कोई दबा नहीं सकेगा। You getting it? If you choose to believe what God is saying to you, you will be free from every fear.
एक बार अगर तू इस बात पे विश्वास करी जो परमेश्वर तुझसे कह रहा है तो तुझे डरना नहीं पड़ेगा। Verse number 15 says, Indeed, they shall surely assemble, but not because of me. सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। Now, Hindi Bible says log, but actually, if you study the scripture in other translation, it will say, the reason of fear will assemble, but not because of me. और जो अगर सही अनुवाद इसका किया जाए तो वहां लिखा है कि बहुत से कारण होंगे तुझे डराने के, पर मेरी ओर से नहीं होंगे। That means God is never going to use intimidation to correct you. इसका मतलब परमेश्वर कभी डर का इस्तेमाल तुझे सही करने के लिए नहीं करेगा। Do you know one thing? Our God never uses fear to correct you. आपको पता है परमेश्वर कभी हमें सही रास्ता बताने के लिए भय का उपयोग नहीं करते। The Bible says, goodness of God will lead men to repentance. वचन कहते हैं कि परमेश्वर के जो उसकी भलाई है वो पश्चाताप की ओर लेके जाती है। So what is God use? What will God use to correct you? परमेश्वर किस बात का इस्तेमाल करेंगे आपको सही करने के लिए? His fear, His punishment, or His goodness? और अपना उसके दंड को या अपनी अच्छाई को, अपनी भलाई को? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो. So now look to your neighbor and say, anytime fear wants to correct you, it is not from God. अपने पड़ोसी को देख के कहिए, अगर भय आपको ठीक कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। God will not use fear or intimidation to correct you. परमेश्वर कभी भय और डर का प्रयोग नहीं करेंगे आपको सही करने के लिए। Now that does not mean that God will not tell you truth. इसका मतलब यही नहीं कि परमेश्वर आपको सत्य नहीं बताएंगे। In book of Revelation, Jesus is speaking to the churches. प्रकाशित वाक्य में यीशु अलग-अलग कलीसियाओं से बात करते हैं। Jesus is never speaking to instill fear. परमेश्वर यीशु वो बात भय डालने के लिए नहीं कर रहे। He is saying change your ways. वो इसलिए कह रहे हैं कि आप बदल जाओ। Because if you don't change, अगर आप नहीं बदले, you will lose the influence you have. आप उस प्रभाव को मिस कर देंगे जो आपके पास है। You know, he said to the church that I will come and remove your lamp. उसने कहा मैं आके तेरा दीवट हटा दूंगा। Many people think that is removing salvation. वो कई लोग समझते हैं कि वो उद्धार के हटाने की बात हो रही है। No, that is influence. वो उस प्रभाव को हटाने की बात हो रही है। It is, I will remove your lamp, meaning you will no longer shine. इसका मतलब है कि वो अब मैं अगर उस दीवट को हटा दूंगा, इसका मतलब अब तुम वो प्रभाव खो दोगे। What does light do? रोशनी करती क्या है? It gives light. वो प्रकाशित करती है। God is saying, I will remove your ministry. I will remove your influence. यीशु मसीह कह रहे मैं तेरी सेवकाई हटा दूंगा, तेरा प्रभाव हटा दूंगा। It's not that I will remove you. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे हटा दूंगा। If you study the word carefully, वो बोलता तेरा दिया हटा दूंगा, तुझको नहीं हटाऊंगा। Amen. हेलो, तुझको हटाऊंगा या तेरा दिया हटाऊंगा? तेरे दीवट को। Will I remove you or will I remove your light? मैं तुझको हटाऊंगा या तेरे दीवट को हटाऊंगा? क्या लिखा है वहां पे? Your light is your ministry. Your light is your influence. Your light is what you do for others. आपका दीवट आपकी सेवकाई है, आपका प्रभाव है, वो कार्य है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। Your influence will be removed. आपका प्रभाव हटा दिया जाएगा। You getting it? समझ रहे हैं आप? So let me tell you one thing. God is not going to use fear to put you in a box. मुझे बता दीजिए परमेश्वर कभी भय का प्रयोग नहीं करते आपको सही करने के लिए। Why? Because God made a covenant. I will never use intimidation for you. क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि कभी भी आपको सही करने के लिए भय का प्रयोग नहीं In Isaiah 54, he said, I will never again. What I'll do? It's beautiful. We are going to read it. Isaiah chapter 54, verse number 10. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पे से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। Verse number 7. For a mere moment I had forsaken you, but with great mercies I will gather you. क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। So what is God using to gather you? परमेश्वर किस बात का इस्तेमाल कर रहा है आपको फिर रखने के लिए? मर्सी। हाँ?
What is God using? बाजू वाले से बोलो, परमेश्वर को अगर मुझे बुलाना है ना तो बंदूक नहीं निकालेगा, बड़ी दया से बुलाएगा. Amen. Amen. सबोपदेशक की किताब में लिखा है, in Ecclesiastes it says, your banner upon my life is love. सप्तदशी की किताब में लिखा है, उसका झंडा जो मेरे ऊपर है वो प्रेम है. Your banner upon my life is love. मेरे जीवन पे जो झंडा है वो प्रेम है. You know, if you have come to Jesus and if you still look at Jesus like those Gentiles who look at devil or their gods, then nothing has changed in you. अगर आप प्रभु में हैं और आज प्रभु को भी वैसे देखते हैं जैसे अन्य जाति अपने देवताओं को देखते हैं, तो कुछ भी नहीं बदला आपके लिए. You need to really know, who do you believe? आपको जानना जरूरी है आप किस पे विश्वास करते हैं. If you think his character is like you, then you have mistaken. अगर उसका चरित्र वैसा है तो आप गलत हैं. You have to really know that God is different than your feelings. आपको जानना है कि परमेश्वर आपकी भावनाओं के जैसा नहीं है. Yeah, in Isaiah 54 he says this beautiful verse here. यशायाह 54 में एक बहुत खूबसूरत पद है. In Isaiah 54 verse number 15. 15 पद कहता है, He says, the problems will assemble to you, but not because of me. सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं. Not because of me. मेरी ओर से नहीं. Verse number 14 says, no oppression will come upon you and you will not have to be scared. तू अंधेर से बचेगी और तुझे डरना ना पड़ेगा. They will come, वो आएंगे but not because of me. मेरी वजह से नहीं आएंगे. Amen. Sickness will come, बीमारी आएगी but not because of me. पर मेरी वजह से नहीं, मेरी ओर से नहीं. Curses may come, श्राप आ सकते हैं but not because of me. पर मेरी ओर से नहीं. Problems and failures may come, समस्याएं और असफलताएं आएंगी not because of me. पर मेरी ओर से नहीं. My question, God, if you're not sending, then where am I getting this from? मेरा सवाल है, परमेश्वर अगर तू नहीं भेजा तो मुझे ये कहां से मिल रहे हैं. Do you know something very important? Job made a declaration. एक अच्छी बात है, अय्यूब ने एक बात कही And we all believe what Job said. और हम उस बात पे विश्वास करते हैं जो अय्यूब ने कहा. I took good things from God. Should I not take bad things from him? अगर मैं परमेश्वर से अच्छी बातें लेता हूं तो बुरी बातें क्यों ना लूं. एक थप्पड़ हो ना जोब को. Job, wake up. अय्यूब उठ जा. Who told you that God is a giver of bad things? किसने बताया कि परमेश्वर बुरी बातों को देने वाला परमेश्वर है. But do you know one thing? पर आपको पता है, Job was an Old Testament guy. अय्यूब एक पुरानी वाचा का, पुराने नियम का व्यक्ति है. Also, one thing about Job, एक और बात जो अय्यूब के he विषय में didn't है, have the revelation that we have today. जो उसके पास वो प्रकाशन नहीं जो हमारे पास है. Ephesians chapter 2 says, what God had hidden from beginning of time in this last days has revealed it to us. इफिसियों दूसरे अध्याय में लेकर जो बातें परमेश्वर ने शुरू से छिपा के रखी है वो इन दिनों में हम पे प्रकाशित की है. So Jesus came as a revelation of God now. इसलिए यीशु जो परमेश्वर का एक प्रकाशन है वो हमारे लिए आया. Do you know Job did not have the understanding that you and I have? अय्यूब के पास वो समझ नहीं थी जो आपके और मेरे पास है. Job was never filled by Holy Spirit. अय्यूब के पास पवित्र आत्मा नहीं था. Job never had the letters that apostles wrote. अय्यूब के पास वो पत्रियां नहीं जो आपके मेरे पास हैं. Job never had the gospel that was preached by Jesus. अय्यूब के पास वो सुसमाचार नहीं है जो यीशु के द्वारा आया. Job only made his experience the base of his education. अय्यूब ने अपने जीवन के अनुभव को अपना आधार शिक्षा का बनाया. Church, we don't make experience our base of revelation, our walk or education. We make the revelation of Christ the base and the foundation of our walk with Christ. कलीसिया हम अपने अनुभव को, अपनी शिक्षा को और अपना डॉक्ट्रिन नहीं बनाते, पर जो प्रकाशन यीशु का है वो हमारा आधार है. You understanding? So for Job he said, shall I not take bad from God? अय्यूब कहता है क्या मैं बुरी बातें परमेश्वर से ना लूं. Job does not know what James knows. जो अय्यूब को वो नहीं पता जो याकूब को पता है. James says, all good gift comes from the Father of light. याकूब कहता है सारी अच्छे वरदान परमेश्वर की ओर से हैं. Only our Father has that. सिर्फ हमारे पिता के पास है And only good things come from और him. उससे सिर्फ अच्छी बातें आती हैं. Do you know Job does not know what Jeremiah knows? अय्यूब को वो नहीं पता जो यिर्मयाह को पता है. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you.
यिर्मयाह कहता है जो जो कल्पनाएं परमेश्वर की वो हमारी हानि की नहीं है, वो लाभ की है और हमें सफल बनाने की So है। God only has good plans for my life. परमेश्वर के पास सिर्फ अच्छी बातें हैं मेरे लिए, And we need to believe that. और हमें इस बात पे यकीन करना है। Never allow. See, you and I today, when we read the story of Job, we know Satan and God were speaking concerning हम जब Job. अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें पता है शैतान और उसमें क्या बात हुई है। We know Satan was doing that. हमें पता है शैतान वैसा कर रहा था, But Job thought God was doing that. पर अय्यूब को लगा कि वो परमेश्वर कर रहा है। And every time you think God is doing it, और हर बार जब आप सोचते हैं परमेश्वर कर रहे हैं, you lose your authority to withstand it. आप अपना अधिकार खो देते हैं उस बात के विरुद्ध, You become powerless before it. आप शक्तिहीन हो जाते हैं। Brother, if God is doing, what can I do? आप सोचते हैं परमेश्वर अगर परमेश्वर करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। If God wanted, God would have done it. अगर परमेश्वर चाहते तो वैसा ठीक कर He सकते थे। gave you authority and power. उन्होंने आपको अधिकार दिया है, He gave you ability. उन्होंने आपको सामर्थ दी है। Stand on the word of truth. परमेश्वर के वचन पे खड़े होइए। He told you that oppression and fear and terror may come, but they are not coming from me. उन्होंने कहा वो डर अंधेर तुझ पे आएगा पर वो मेरी ओर से नहीं है। You have to believe that. आपको इस बात पे विश्वास करना है। If you believe that that business went out because God didn't want it, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो बिजनेस चला गया क्योंकि परमेश्वर चाहते थे, if you think that that sickness came from so and so because God wanted, आप सोचते हैं कि आपको बीमारी इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर चाहते थे, if you think that your child failed in certain class because God wanted, आप सोचते हैं अगर आपका बच्चा फेल हो गया और क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहते थे, if God is doing everything that devil is supposed to do, then why do we need devil? अगर परमेश्वर हर वो बात करे जो शैतान करता है तो हमें परमेश्वर की जरूरत क्यों है, शैतान की जरूरत क्यों है? Wouldn't it be silly to punish his son on the cross so brutally and then send sickness? कितना अजीब सा है कि वो अपने बेटे को इस तरीके से क्रूस पे दंड दे और फिर आपको मुझको पीड़ा पहुंचाए। चंगाई के लिए उसको मार डालो और उसके बाद दूसरे को बीमार कर दो। दिमाग खराब हो गया यानी। But how sad that we believe like that. कितनी दुख की बात है कि इन बातों पे विश्वास करते And because we believe like that, हैं और चूंकि हम इन बातों पे विश्वास करते हैं, we never grow in the maturity that God has for us. हम उस परिपक्वता में नहीं बढ़ पाते जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, And we end up teaching the same things. और हम इन्हीं बातों को सिखाने लगते हैं। Come with me to Psalm 27. Psalms भजन 27. संहिता उसका 27वां अध्याय देखिए। Psalms 27. 27वां अध्याय भजन संहिता। David was so confident that his enemies don't come from God. दाऊद को इस बात का पूरा विश्वास है कि जो उसके शत्रु हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते। See what he says, Psalm 27 verse number 1 onwards. Anybody देखिए can read 27वां it. अध्याय पहला पद कहता है, पढ़िए, जिसको भी मिल गया पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिरे पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चय रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी ने यतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। Okay, what is David saying in Psalm 27? क्या कह रहे हैं दाऊद इस 27वें भजन में? He said, I have made a choice, I'm not going to fear. मैंने एक निर्णय लिया कि मैं नहीं डरूंगा। David, why are you not scared? दाऊद तो डर क्यों नहीं रहा? He said, even in enemy camp against me, I'll not fear. अगर शत्रु मेरे सामने डेरा भी डाल दे तो भी मैं नहीं डरूंगा, Because deep down in his heart, he has a confidence. क्योंकि उसके जीवन उसके मन में एक विश्वास है। The source of this problem is not my God. उसका जो कारण है वो परमेश्वर नहीं है। He sees his God on the solution side, not on the problem side. वो अपने प्रॉब्लम को, अपने खुदा को प्रॉब्लम की ओर नहीं देखता, सॉल्यूशन की ओर And देखता है। because he believed that, he saw great things in his और life. चूंकि इस बात में विश्वास करता है, उसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातें As देखी। long as Job was believing problems are from God, his problems were not going away. जब तक अय्यूब इस बात पे विश्वास करता है कि सारी समस्याएं परमेश्वर की ओर से हैं, वो उन समस्याओं से निकल नहीं पाया। But when you read chapter 38 to 42, पर जब आप 38 से आगे पढ़ते हैं, where God spoke to Job, जब परमेश्वर ने अय्यूब से बात की, God said, get up, be a man, I'm going to question you, answer me. और परमेश्वर ने कहा उठ मुझसे बात कर, मैं तुझसे सवाल पूछता हूं। Do you think that in your wisdom you're going to defile me?
क्या तू अपनी बुद्धि से मुझको परिभाषित कर सकता है? And we think, see, God is telling him. और हम सोचते थे कि परमेश्वर उसे बता रहा है। My friend, God is educating him as a father is educating to a child. परमेश्वर उसको एक पिता के सामने उसको सिखा रहा है। That's why he says, hey Job, do you have hands like me? वो कहता है अय्यूब क्या तेरे पास मेरे से हाथ हैं? Can you speak like me? क्या मेरे समान बातें कर सकता Then है? I will tell you, get up, वह कहता उठ, change your robe, अपने वस्त्र बदल, speak to the evil and remove it. उस बुराई से बात कर, उसको हटा। Look at every evil and put them out of your country. सारी बुराई को देखकर उसको हटा। It's saying, look at the evil and remove them from your land. उन बुराइयों को देखकर उसको अपनी जमीन से हटा दे। And what is he saying? Then I will tell you concerning you, your own right hand can save you. तब मैं तेरे विषय में ये कहूंगा, तेरा खुद का दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है. God made this declaration about Job. अय्यूब ने परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में ये बात कही। Job is thinking God will do something. अय्यूब सोचा था परमेश्वर कुछ करेगा, God is thinking, Job, you have to do about it. पर परमेश्वर कहे अय्यूब तुझको करने की जरूरत And है, nobody is doing anything. और कोई कुछ नहीं कर रहा। Why is Job not fighting that problem? अय्यूब क्यों समस्या से लड़ नहीं पा रहा? He's just sitting and taking beatings. वो लगातार पीड़ा पे पीड़ा ले रहा है। Why is he receiving this वो problem? लगातार इन पीड़ाओं को क्यों ले रहा है? Because he believes God is the source of this thing. क्योंकि उसका इस विश्वास है कि परमेश्वर की ओर से समस्याएं आई हैं। But the day his belief changed पर जिस दिन उसका विश्वास बदला, was the day God gave him victory. जिस दिन उसी दिन परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। God told him, I am not the source of this. परमेश्वर ने कहा मैं कारण नहीं हूँ, I am not the source of this. मैं इसका सोर्स नहीं हूँ, Enemy is the source of this. शत्रु इसका सोर्स है। You have to rebuke it. तुझे उसको डांट के हटाना My है। friend, we as a church need to know our God is a good God. पर कलीसिया में जानने जरूरत है कि हमारा परमेश्वर अच्छा So परमेश्वर if है। something is not working in your workplace, it is not God. अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा उसका कारण परमेश्वर नहीं है। If something good is not working in your family, it's not God. कुछ अच्छा अगर अपने परिवार में नहीं हो तो उसका कारण परमेश्वर If नहीं something है। is not working in your financial life, it's not God. आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है। If something bad is happening to your health, it's not God. अगर कुछ आपके साथ बुरा शरीर में हो रहा है तो उसका There कारण is a परमेश्वर नहीं है। devil. वो शैतान का है, He is the liar. वो झूठा है। He comes to steal, to kill, and to वो destroy. आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। Jesus never come to steal, kill, and destroy. और यीशु कभी घात करने, नष्ट करने, चोरी करने नहीं आया। Jesus is not the source of stealing. यीशु चोरी करने का कारण नहीं है, He is actually the source of restoring. वो वापस उसको पुनः स्थापित करने का कारण So है। we must believe in Jesus. हमें Right? यीशु पे उसकी तरह विश्वास करना चाहिए। As long as in your mind you believe it is from God, then you will never fight it. जब तक आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि आपकी समस्याएं परमेश्वर की ओर से हैं, आप लड़ नहीं पाएंगे। You have to change your belief like David. आपको दाऊद के समान अपना मन बदलने की जरूरत I है। will not fear even if enemies come. मैं कभी नहीं डरूंगा चाहे कितने भी शत्रु आ जाए। Why? क्यों? I know my God is bigger. क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर He बड़ा is है। my refuge. वो मेरा शरण स्थान है, He is my वो refuge. मेरा शरण स्थान है। And because David declared this upon his life, he saw victories in his और life. चूंकि दाऊद ने इस बात की घोषणा अपने जीवन पे की, उसने विजय को देखा। Same thing Paul declares. ऐसी ही बात पौल कहते हैं Romans chapter 8 verse number 1. रोमियोस का 8वां अध्याय का पहला पद। What does Bible say? वहां क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर यीशु ने उनको दंड किया, Those who are in Christ, there is no condemnation on them. जितने यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, Oh. There is no condemnation on them. उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। Why? क्यों? They are in Christ already accepted. क्योंकि वो यीशु में पहले ही मान लिए गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। When they are in Christ, they have moved from if domain into because domain. क्योंकि वो यीशु में है, वो यदि से निकलकर क्योंकि में आ चुके हैं। Because they are in Isaiah 54, they can rejoice. क्योंकि वो यशाया 54वें अध्याय में है, वो आनंद करते It's हैं। not that they don't make mistakes. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, Even if they make mistake, they rise up 7 times. वो गलतियां करते भी है तो भी वो 8-7 बार खड़े होते It हैं। doesn't matter. कोई फर्क नहीं They'll पड़ता। rise up 70 times. वो 70 बार खड़े उठे, It doesn't matter. फर्क नहीं They will पड़ता। keep rising up because it is in their वो DNA. बार बार उठेंगे क्योंकि उनकी संरचना में है। You got to believe better things. आपको बड़ी बातों पे विश्वास करने की If you जरूरत come है। with me to book of Esther, आप अगर एस्तर की किताब में आएंगे you मेरे know, साथ, enemies believe better thing for the people of God. Esther एस्तर chapter 6, उसका 6वां अध्याय, verse number 13. उसका 13वां पद। Anybody read it loud for us? और हमान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों
और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मौद्रिके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे ये बातें कर ही रहे Okay, थे। that's it. What did the wise people say to Haman? बुद्धिमान मित्रों ने क्या कहा? यदि वह यहूदियों के वंश का है, If this Mordecai, before whom you have started falling today, if he belongs to the clan of Jews, उन्होंने कहा यदि ये जो यहूदी जिससे आज तूने नीचा खाया है, यदि ये यहूदियों का वंश का है, they didn't say because he is more wiser than you. उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि मौद्रिके ज्यादा समझदार है इसलिए, They didn't say because he is more stronger than you. उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि मौद्रिके और ताकतवर है इसलिए, They didn't say because he has more influence than you. इसलिए नहीं कि मौद्रिके के पास ज्यादा प्रभाव है, Nothing that he has. ये मौद्रिके के विषय का नहीं It's है, simply who he is. वो किस वंश का है, किसका है, ये मैटर What करता does है। Bible say? देखिए वचन में क्या लिखा है, See? यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। Do you know Satan knows this? क्या आपको पता है, शैतान को ये बात पता है, That if you belong to Jesus Christ, he will never be able to overcome. अगर आप ये यीशु के हैं तो वो कभी आप पे प्रबल नहीं हो सकता। Do you know every problem knows this, that they cannot overpower you if you belong to Jesus? जितनी भी समस्याएं उनको ये पता है, अगर आप यीशु के हैं तो वो आप पे प्रबल नहीं हो सकती। The only way you belong to Jesus is by your faith. एक ही तरीका जिससे आप यीशु के हैं वो आपका विश्वास है। By faith you abide in him. आप विश्वास से उसमें बने रहते हैं। You have to abide in Christ. आपको यीशु में बने रहना है। How do you abide? कैसे बने रहते By हैं? faith in Jesus. विश्वास से जो यीशु And the पर है। covenant says, और वाचा कहता है, oppression may come, fear may come, they are not coming from me. दबाव आएगा, अंधेर आएगा, डर आएगा, पर वो मेरी ओर से नहीं, They are not from me. वो मेरी ओर से नहीं, I am not sending it to them. मैं उनकी ओर ये बातें नहीं In भेज fact, रहा, I am going to be with you in defeating them. पर मैं तेरे साथ होऊंगा उनको हराने में। Hello. We as a church need to embrace the truth of the word of God. हमें जरूरत है कि हम इस सत्य को अपना लें। If we embrace this truth, अगर हम इस सत्य को अपना लें, like David embraced, जैसे दाऊद ने अपनाया, I will not fear because you are my refuge. जैसे मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। Even if an enemy camps around me, अगर सारे शत्रु में चारों ओर डेरा लगा ले I तो will भी not be scared, Lord. मैं नहीं डरूंगा, I will not be scared. मैं नहीं डरूंगा। Isaiah 54 says, you will not have to fear of the sudden operation of fears, यशायाह में लिखा है, अचानक आने वाली विपत्ति से तुझे डरना नहीं पड़ेगा, because you'll be established in righteousness. क्योंकि तू धार्मिकता में स्थापित किया जाएगा। What is righteousness? धार्मिकता क्या है? Right standing with God. यीशु के साथ, प्रभु परमेश्वर के साथ सही खड़ा होना। That means I don't have misunderstanding about my God. इसका मतलब परमेश्वर के बारे में मुझे कुछ भी गलत धारणा नहीं है मेरे What अंदर। is righteousness? धार्मिकता क्या It है? is a gift that God gives to a person when every misunderstanding about God is removed. वो एक ऐसी क्लैरिटी है परमेश्वर के बारे में जहाँ सारी गलत बातें हट जाती हैं। And when that misunderstanding is removed, सारी गलत धारणाएं जब हट जाती हैं, what happens? क्या होता है? Confidence is bred. आपके अंदर एक विश्वास आता है, And you can enter into the fire with confidence. आप उस आग में पूरे विश्वास के साथ चले जाते You हैं, can enter into the water with confidence. आप जल में चले जाते हैं पूरे विश्वास के You can साथ, enter into problems with आप किसी भी confidence. समस्या में पूरे विश्वास के साथ जाते You हैं। will know because of you everything will change. आपको पता है आपके होने से सब कुछ बदल जाएगा। Romans 8:28 becomes your understanding. रोमियोस का 8वां अध्याय उसका 28वां होता है, आपकी सच्चाई बदल जाता है। All things will work for my goodness. सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, All things. सारी बातें, All things का मतलब क्या है? सारी बातें, Huh? Everything. Question why? क्यों? बोलो because I have moved from if into because. क्योंकि मैं यदि से क्योंकि में आ गया हूं, Because I'm an Isaiah 54 generation. क्योंकि मैं यशायाह 54वें अध्याय के वंश का हूं। I am not Deuteronomy 28 generation. मैं- I am Isaiah 54 generation. मैं व्यवस्था विवरण 28 का नहीं, मैं यशायाह 54 के वंश का हूं। Deuteronomy 28 for my reference, Isaiah 54 for my application. जो 28वां अध्याय व्यवस्था का वो मेरी जानकारी के लिए है, पर जो 54वां अध्याय वो मेरे जीने के लिए है। How will that happen? ये कैसे होगा? If I put my trust in Isaiah 53. जब मैं अपना विश्वास 54वें अध्याय पे रखूंगा, Because of Jesus. यीशु पे, Because of Him.
उसकी वजह से, because of what Jesus has जो done, कुछ यीशु ने किया I है, will see victories in my मैं life. अपने जीवन में जयवंत You हो want रहा to हूं। see victories in your life? क्या अपने जीवन में जय देखना चाहते हैं? Put your trust in Jesus. अपना विश्वास यीशु पे रखिए। Hallelujah. Hallelujah. My friend, I want to tell you, this is a beautiful covenant. ये मैं दोस्तों में बताना चाहता हूँ, ये अद्भुत वाचा है। Never think that you can earn God's blessing because of you living right. कभी मत सोचिएगा कि आप परमेश्वर की आशीष पा सकते हो क्योंकि आप एक सही जीवन जी रहे हैं। It doesn't happen. ये कभी नहीं होता, It doesn't happen. ये ऐसा कभी नहीं होता, It doesn't happen. ऐसा नहीं होता। Bible says no man is justified before God by keeping of law. कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही नहीं है व्यवस्था रखने में। व्यवस्था रखने के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराया जाता। The purpose of law was to find sin in you. जो व्यवस्था का उद्देश्य था वो आप में पाप को पाना था, The purpose was not to declare you holy. पर आपको पवित्र करना उसका उद्देश्य नहीं था। The purpose was to find you sick. आपको बीमार पाना व्यवस्था का उद्देश्य है। That's why God gave law, that it can find sin in you. वो परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी कि आप में वो पाप को देख But सके। the problem is, religion teaches us that is the purpose of the law, that I will be right with God. और हम धर्म हमें सिखाता है व्यवस्था इसलिए आई ताकि हम परमेश्वर के साथ सही हो जाए। No, law was never given that we be right with God. It was only given to show that we can only be wrong with God. वो इसलिए नहीं था कि हम परमेश्वर के साथ सही हो जाए, पर वो इसलिए था कि हम जान जाए कि हम सही नहीं हो सकते। MRI मशीन दवाई नहीं है, वो डायग्नोस्टिक करता है। Amen. X-ray is not the medication, it's not the treatment, it is a diagnosis. Law is a diagnosis, grace is the treatment. लॉ जो व्यवस्था है वो सिर्फ पता लगाता है, पर जो अनुग्रह है वो ठीक करता है, दवा देता है। व्यवस्था बीमारी ढूंढता है, अनुग्रह उसे चंगा करता है। Amen. Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Are you understanding? That's why goodness of God leads man to repentance. इसलिए परमेश्वर की भलाई पश्चाताप की ओर लेके जाती है। That is the medicine. वो दवाई है। Train your mind to plug into goodness of God. अपने अपने मन को परमेश्वर की भलाई में लगाना सीखिए। But brother, if God is so good, then why to change? God is so good, then why should I change? जब परमेश्वर अच्छा है तो मुझे बदलने की जरूरत क्यों है? The question is, because He is so good, He will come in your life, you will die, and He will live His life. और वो चूंकि बहुत अच्छा है वो आपके जीवन में आएगा और आप मर जाएंगे और वो आपके द्वारा सही जीवन जिएगा। Law said change. व्यवस्था ने कहा बदलो, Grace doesn't say change. पर अनुग्रह नहीं कहता बदलने के लिए। Grace kills you. अनुग्रह आपको मार देता है। No longer you live, Christ lives in you. अब आप नहीं जीते पर आप में यीशु जीता है। हेलो, लॉ रिपेयर करने की बात करता, ग्रेस इक्विपमेंट ही बदल देता। आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। ओल्ड नहीं, नया दूंगा। Nobody will teach you to follow me. You will follow me because I will give you a new heart. मैं कोई तुम्हें बताएगा नहीं मेरे पीछे आने के लिए, मैं तुम्हें नया मत दूंगा इसलिए तुम मेरे पीछे स्वयं This आओगे। is what grace does. अनुग्रह यह करता है। Once you allow grace to do its work, एक बार अनुग्रह को अपने जीवन में अगर आप काम करने दें, backsliding will stop in your life. वो पीछे हटना आपके जीवन में बंद हो You जाएगा। will abide in Christ. आप यीशु में बने रहेंगे। You will do great and mighty things. आप बड़ी बड़ी चीजें You करेंगे। will live a powerful life. आप एक सामर्थ्य जीवन You will live जिएंगे। a victorious आप life. एक जयवंत जीवन जिएंगे। You just have to win in your mind. आपको अपने मन में जीना होगा। Renew your mind by the word of God. वचन से अपने मन को नया करना होगा। How? कैसे? By the truth of the word of God. परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को What जानकर। is the truth? सच क्या है? Any word in the Bible which does not carry the character of Christ is not truth. जो बातें यीशु का चरित्र वचन नहीं रखती वो सत्य नहीं है, Even if it is in Bible. चाहे वो वचन में ही क्यों ना हो। Brother, whole Bible is truth. पाल साहब सारा वचन तो सत्य है, We should follow it. हमें उसे पालन करना Do you know चाहिए। the Bible says if your child disobeys you, take him out and throw stones at him and kill him? आपको लगा वचन में लिखा है अगर तेरा पुत्र बात नहीं मानता तो उसे बाहर ले जा और उसे पत्थरवा करके मार दे। तो कर देते। Is there any parent जिसके बच्चे ने कभी आज्ञा नहीं तोड़ी उसकी? यहाँ कोई ऐसा है? कभी आज्ञा नहीं तोड़ी? तुम तो पेरेंट ही नहीं बने अभी। I said, is there any parent कोई भी अभिभावक यहाँ पे ऐसा है जिसके बच्चों ने कभी भी उनकी आज्ञा नहीं तोड़ी?
Every child disobeyed their parents. सभी बच्चों ने अपनी माँ बाप की बात The कभी penalty नहीं of disobedience in the Bible for children was to stone them to death. और ऐसे बच्चों का जो दंड था उनको पत्थरवा करके मारना था। God removed it परमेश्वर से हटा दिया and gave His mercy. और अपना अनुग्रह दिया है। My friend, I want you to understand. मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात को जाने। This teaching is not to make you continue in sin. ये शिक्षा इसलिए नहीं कि आप लगातार पाप में बने रहें, But if you allow this teaching, it will transform your walk with Jesus. पर अगर आप इसको मान लेंगे तो ये आपको बदल देगा और यीशु के साथ चलने के लिए संभव You बनाएगा। will walk in victory. आप जय में चलेंगे, You will see freedom. आप स्वतंत्रता देखेंगे। Come back with me to Isaiah 54 वापस 54वें अध्याय में and we will close with this. और हम इस बात से इसको समाप्त करेंगे। The Bible says, वचन में लिखा है verse number 15, Indeed, they shall surely assemble, but not because of me. Whoever assembles against you shall fall for your sake. जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया, किसके कारण गिरेंगे? तेरे कारण। आमीन। When you believe what Isaiah 54 is saying, rejoice, O barren. When you believe in this new covenant, no weapon of enemy will prosper against you. जब आप इस 54वें अध्याय पे विश्वास करेंगे तो जितने भी शत्रु के हथियार है वो आपके सामने सफल नहीं होंगे। You will see victory. आप जय को देखेंगे। Guess verse number 17 says, देखिए 17वां पद क्या कहता है। No weapon formed against you shall prosper. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करें तू उन सबों से जीत जाएगा। This is the heritage of the servants of the Lord, यहोवा के दासों का यही भाग होगा and their righteousness is from me. और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। किसके कारण? मेरे कारण। जोर से बोलो, मेरे कारण, किसके कारण? यहोवा के कारण। Not because of their work. वो अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहरेंगे, मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। I want you to realize our righteousness does not come by right doing, it comes because of Jesus. मैं चाहता हूँ इस बात को जाने कि हमारा धर्मी होना हमारे कामों पे नहीं यीशु की वजह से। And he says, I will make them righteous. और वचन कहता है मैं उनको धर्मी And बनाऊंगा। because I will make them और righteous, चूंकि मैं उन्हें धर्मी बनाऊंगा, every lying tongue they will stop. जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे वो हारेंगे उनके सामने। Nothing will be able to stand. कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। That means if anybody curses you, अगर कोई आपको श्राप देगा you don't have to worry about it. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। Why? Because you will overcome their curse. क्योंकि आप उनके श्रापों पे जीत जाएंगे। There is something which you have which is more powerful than what the world has. क्योंकि आपके पास वो है जो संसार से ज्यादा सामर्थी है। The word says, greater is he who is in you than he who is in this world. जो संसार में उससे ज्यादा बड़ा मेरे अंदर है। But the way you operate in that is if you have right understanding about your God. पर उस बात को ऑपरेट करने के लिए, उसको जीने के लिए सही समझ की जरूरत है। Again, righteousness also means coming into right understanding with God. धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर को सही रीति से जानना और समझना। And God is saying, because of me, they will be righteous. और वचन कहता है, परमेश्वर कह रहे हैं मेरे कारण मेरे दास धर्मी होंगे। They will be righteous because of me. मेरे कारण वो धर्मी होंगे। Now, if you are righteous because of Jesus, अगर आप यीशु की वजह से धर्मी हैं, my friends, I tell you, the list of blessing is endless. तो जो आशीष है वो अनंत है, असीमित है। Next week, I'm going to teach you what happens when you're rooted and grounded in righteousness. अगले सप्ताह में आपको सिखाऊंगा जब आप धार्मिकता में बने रहते हैं, जड़ित होते हैं तो उसकी क्या Next आशीष है। Sunday, we have, it's 2nd October. 2 अक्टूबर को We're going to spend whole day here. हम पूरा दिन यहाँ बिताएंगे। We will have lunch together. हम साथ में लंच करेंगे। Nobody has to cook, food will come. किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, खाना आएगा। But from 10 till at least 4 or 5 o'clock, we're going to be here. सुबह 10 से 4 बजे तक हम यहीं होंगे। Food will be here, खाना होगा, tea will be here. चाय होगा, So don't worry about anything. किसी बात की चिंता ना करें। But we are going to study the word. और हम वचन सीखेंगे उसमें। And I want you to bring your notebook and Bibles. मैं चाहता हूँ उस दिन अपना नोटबुक और अपनी बाइबल लेके Because if you get what I'm teaching, आएं। अगर आप उस बात को समझ ले जो मैं सिखा रहा हूँ, you will never fear in life. आप कभी अपने जीवन में नहीं डरें। And you will never live a miserable life. आप कभी एक पीड़ित जीवन नहीं जिएंगे। You will go from glory to glory, आप महिमा से महिमा में from चलेंगे, faith to faith. विश्वास से विश्वास If में। anybody is not feeling well in your family, अगर कोई आपके परिवार में अच्छा महसूस next नहीं कर Sunday रहा bring them, I'll bring bed along. होगा,
उनको ले आइए, मैं यहाँ पे बेड का भी इंतजाम करूंगा। No, we will heal them. हम उन्हें चंगा करेंगे। हालेलुया। But don't keep them away. पर उन्हें दूर मत रखिए, Everybody come. सबको लेके आइए, Because God is going to do great things. क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करेगा। Next Sunday is going to be very glorious. अगला अगला रविवार बहुत We're महिमान्वित going to होगा। be in a classroom where Holy Spirit will take us deep. हम उस एक ऐसी जगह पे होंगे जब पिता हमें गहराई में लेके चले। And so everybody come prepared. सारे लोग तैयारी के साथ Cancel all your appointments for Sunday सारे अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर and be दीजिए here. और यहाँ होइए, Because God is going to speak to us. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बातें The करेंगे। more we allow His word to shape us, the more liberty will come into our जितनी life. ज्यादा हम उसके वचन को अपने जीवन में काम करने देंगे, उतनी स्वतंत्रता हम महसूस Thy करेंगे। word is a lamp unto my feet, उसका वचन हम मेरे पाँव के लिए दीपक, light unto my path. मेरे रास्ते के लिए दीपक है, That उजाला है। means if I have light, I can walk freely. अगर मेरे पास उजाला है तो मैं चलने पाऊंगा। You will not be fearful anymore. आप नहीं डरेंगे फिर कभी, Fear of future will not be there. भविष्य का डर नहीं होगा। What will happen? That question won't exist. क्या होगा ये सवाल आपके जीवन में नहीं होगा। I don't live on worldly economy. I live on my Father's faithfulness. मैं संसार के इकोनॉमी पे नहीं, पर मेरे पिता पे जीता हूँ। He is able. वो He is सामर्थ्य able. है, वो कर सकता He है, is able. वो कर सकता He है, is able. वो कर सकता है। God is able to do exceeding abundantly what we can परमेश्वर do for अद्भुत us. बड़ी चीजों को कर सकता है मेरे लिए। Amen. This morning I want you to focus your eyes on Jesus. मैं चाहता हूँ आज आप यीशु को देखें। Do you know him like David knew? क्या आप उसको ऐसे जानते हैं जैसे दाऊद जानता था? Even if enemy comes, I will not fear. और शत्रु आ भी जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। Do you know him like Isaiah knows? जैसे वो यशाया जानता था, क्या वैसे जानते हैं? Sing, O barren, ए बांझ तू जय जयकार कर, because your husband is mightier. क्योंकि तेरा पति तेरा करता है। With him, उसके साथ your barrenness can never prevail. तेरा बांझ होना कभी जयवंत नहीं हो। John 15, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you abide in me, you will bear much fruit. 15 अध्याय में यीशु ने कहा, मैं दाख लगा तो मेरी डालियां हो, जो मुझे बना रहता है बहुत सफल लाता है। That simply means इसका मतलब है my husband is so powerful that every barren area of my life will die. इसका मतलब मेरा पति इतना सामर्थ्य है कि मेरे जीवन में जितना जहां जहां बांझपन है वो उसे ठीक कर सकता है। My dryness is not powerful before his seed. मेरा बांझपन होना उसके बीज के सामने सफल नहीं होता। He is powerful. वो सामर्थ्य है। And what is the seed? और वो बीज क्या है? His word. उसका वचन है। He will send forth his word. वो अपना वचन भेजता Let है। his word mingle in your heart with faith. उसका वचन आपके हृदय में विश्वास बन जाए। And watch what God will do. As we close our eyes, जब हम अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, receive this word with meekness in your heart. पूरी नम्रता के साथ इस वचन को रिसीव कीजिए। So Lord, I thank you that you caused Isaiah 53 to happen. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने यशाया का 54वां अध्याय होने दिया। You allowed Isaiah 53 to happen. तूने 53वां अध्याय यशाया का होने दिया And प्रभु। because of Isaiah 53, I can live in 54. चूंकि तूने 53वां अध्याय यशाया का होने दिया प्रभु, मैं 54वें अध्याय में जीता हूँ। No longer based on my works, it based on your works. अपने कामों पे नहीं, पर तेरे कामों पे जीता हूँ। Therefore, I will not fear any evil इसलिए मैं किसी भय से नहीं डरूंगा, because I belong to you. क्योंकि मैं तेरा हूँ, You are mine, O Lord. आप मेरे हैं।